Hello everyone, I welcome you all in today's class. So first of all, let me inform you that today means it is supposed to be the last class for trigonometry, means chapter 8. Okay, I'll try to finish up this chapter, and few of the students they told me to describe examples. Okay, so I'll not take all the examples, fine, because all are not so difficult, but the examples in which some proofs are required or in which you will require some kind of hint, only those examples I'll be taking today. And I'm not beginning from the first example, okay, I'm beginning from the last example, okay, that is your example 50, fine. Your example 15 is this is your example that we need to prove sine theta minus cos theta plus 1 upon sine theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 upon sec theta minus tan theta, where we can use the identity sec square theta equals to 1 plus tan square theta. Okay, means your second identity of trigonometry we are going to use over here. So as I told you that this is just equivalent to your exercise question. Okay, नाउ यू कैन चेक, हमको जो दिया हुआ है वो साइन एंड कॉस के फॉर्म में एलएचएस दिया हुआ है, एंड आरएचएस इज इन फॉर्म ऑफ सेकंड tan थीटा, फाइन. तो कैसे हमको सेकंड tan थीटा यहाँ पास मिल सकता है? तो आपके पास एक सिंपल सा आइडिया है, इफ यू डिवाइड दिस बाय cos थीटा, है ना, अगर आप इसके एलएचएस को डिवाइड कर दें बाय cos थीटा, ओके, सो साइन अपॉन cos इट विल बी sin upon cos tan theta minus cos by cos, it's 1 by cos, it will be sec theta whole divided by sin by cos tan plus 1 minus sec theta. Hope it is clear. What we have done separately in numerator and denominator we have divided by cos theta, and further that we will have. Now I'm going to rearrange this. Okay, I'm going to rearrange this. It will be like tan theta plus sec theta minus 1 whole divided by tan theta plus sorry, not plus, minus sec theta plus 1. Okay, I hope you remember in that question we have just put the value of 1, है ना, वहां पर हमने 1 की वैल्यू रखा हुआ था, ठीक है. तो आपको याद हो वहां हमको न्यूमिनेटर में चाहिए था आंसर, है ना, हमारा जो एलएचएस था वो हमको प्रूफ करना था, वो उसका आरएचएस हमारे पास न्यूमिनेटर में था, ठीक है. लेकिन यहाँ पर आरएचएस का जो ऑप्शन है वो कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में है, जो हमको प्रूफ करना है, फाइन. दैट मीन्स यहाँ पर हमें कुछ यहाँ से कॉमन निकालना है. आई यू अंडरस्टैंड? मीन्स यहाँ कुछ वैल्यू रहेगी, ठीक है, रिमेनिंग ऑल विल कैंसिल, मतलब न्यूमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और इनके अलावा जो भी टर्म हुई डिनोमिनेटर में दैट विल आल्सो गेट कैंसिल, ठीक है. तो हमको इस वन को यहाँ पुट अप करना है, सिंपल सी बात ये, ठीक है. आपको इतना समझना है कि जहां पर भी वैल्यू आपको सस्टेन कराना है ना, जहां पर वैल्यू रखना है वहां उस टर्म को छोड़ के बाकी सारा कुछ आपको एलिमिनेट कराना पड़ेगा, ठीक है. और एलिमिनेट कैसे कराना पड़ेगा? वो जो आपको एक हिंट दिया रहेगा ना, कि नहीं ये हिंट आपको दिया रहेगा, ठीक है, ये जो आपको इस टाइप की हिंट दी हुई है ना, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी दिस विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन. तो ये आपको जो हिंट दी है इसके अकॉर्डिंग आपको 1 को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है. सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रिक लगानी पड़ेगी कि ये सारा सब कुछ कैंसिल हो जाए, सिर्फ ये टर्म्स हमारे पास रह जाए. ओके, सो सी हाउ आई एम राइटिंग दिस, tan थीटा plus sec theta minus 1 upon tan theta minus sec theta, and at the place of 1
I'm substituting this, so it will be sec square theta minus tan square theta. Okay, clear? Next. Fine. Now, next term will be tan theta plus sec theta minus 1 whole divided by. Okay. Now, in RHS you can see we want sec theta minus tan theta, है ना? और हमारे पास यहाँ पर जो है, अगर हम आइडेंटिटी यूज करें थर्ड एंट्री ऑफ अलजेब्रा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं? tan theta minus sec theta in the bracket plus in bracket we will have sec theta plus tan theta and in next bracket sec theta minus tan theta. Okay. Now in the next term tan theta plus sec theta minus 1 whole divided by, we want sec theta minus tan theta. Okay, so we will take out sec theta minus tan theta out of the bracket, और यहाँ है tan minus sec, तो यहाँ क्या बचेगा? -1 plus inside it will be sec theta plus tan theta, and now you can check this entire term will be cancelled, and at the last we will have 1 upon sec theta or not plus, which is your RHS. ओके, सो क्या किया हमने? LHS हमने लिया, LHS के लेने के बाद हमने उसको किससे डिवाइड किया? cos थीटा से डिवाइड किया, cos थीटा से डिवाइड करने के बाद हम उसको रीअरेंज किया. आफ्टर रीअरेंजिंग वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ 1. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 1 वी विल यूज थर्ड एंट्री ऑफ अलजेब्रा a square minus b square. फाइन, it will be like this, and then further we will take out sec minus tan, जो कि हमको RHS में चाहिए है, and then जो भी आपके पास ब्रैकेट में रह जाएगा it will be cancelled from the numerator, and this is our whole proof. Next example 40, and I don't think so that you will need any kind of proof in example 14. It's very simple. ठीक है, आपको cos कॉमन लेना है, cos कॉमन लेने के बाद आपका cos कैंसिल हो जाएगा, एंड ओके, शायद नहीं समझ आएगा, हम बता दे रहे हैं. Is cot theta, or it's example 14, cot theta minus cos theta upon cot theta plus cos theta equals to, हमें प्रूफ करना है cosec theta minus 1 and cosec theta plus 1. ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसको जब आप साइन एंड कॉस के फॉर्म में चेंज करो तो इट विल बी cos theta upon sin theta minus cos theta as it is whole divide by cos theta upon sin theta plus cos theta. फाइन, तो अब देख पा रहे हो कि यहाँ पास cos theta दोनों में है, तो आप इसको कॉमन ले लो. Inside the bracket 1 upon sin theta minus 1 and cos theta, over here you can take common, and it will be 1 upon sin theta plus 1. This cos will be cancelled, and you know 1 upon sin is cosec. Okay, and rest is equal. So it's not so difficult. ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से cos कॉमन लेना है, cos कैंसिल हो जाएगा, एंड लास्ट विल बी, मीन्स आपको एक दो स्टेप में आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा. योर एग्जाम्पल 13.
this is your example. Now sec theta can be written as, I'm taking LHS first of all. Now sec theta means 1 upon cos theta, and I can write like 1 minus sin theta. Okay, ये हमने एज इट इज रखा और cos को ये लिख दिया, ठीक है। और यहाँ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। फाइन, समझ आया क्या किया? sec को कन्वर्ट कर दिया 1 बाय cos को, और यहाँ पर sec और tan को भी कन्वर्ट कर दिया हमने sin एंड cos के फॉर्म में। देन नेक्स्ट, ये क्या हो गया अपने पास 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा into, here we can take LCM, so it will be 1 plus sin theta upon cos theta, isn't it? Now a plus b, a minus b, so it will be a square minus b square cos into cos, cos square theta. Now 1 minus sin square theta is cos square theta upon cos square theta. Both will be cancelled and your answer will be 1, which is RHS. Okay, so क्या किया? Sec and tan both we have converted in the form of sin and cos. Further we will use the third identity of algebra. After using identity of algebra, we will use first identity of trigonometry. 1 minus sin square theta can be written as cos square theta, and as we have already cos square theta in denominators, both will be cancelled, and at last we will have one, that what we need to prove. Okay, now is your example 12. Fine. As I already told you कि आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अपने मन से बना लेना है ना, कि सारे जो रेशियोज हैं उनको आप साइन कॉस टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करें। यही आपका क्वेश्चन है एग्जांपल 12। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉस थीटा, टेन थीटा एंड सेक थीटा, ठीक है, ये थ्री जो रेशियोज हैं ये आपको कन्वर्ट करने हैं किसके फॉर्म में? साइन थीटा के फॉर्म में इनको लिखना है, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी से कॉस को हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो आपको समझ आया बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और कॉस अगर हमको मिल गया तो हम सेक भी लिख सकते हैं। सेक थीटा होगा 1 अपॉन कॉस, और कॉस की जगह पे आप ये लिख दो, ठीक है। तो आपके पास आ गया ये 1 बाय रूट 1 माइनस sin square theta. So sec square can be written as 1 upon root 1 minus sin square theta. Now tan theta, tan theta मतलब होता है sin upon cos, isn't it? ठीक है, तो sin की वैल्यू तो वही है sin, cos की जो वैल्यू है वो आप लिख दो, ये हो गया 1 minus sin square theta. So all we have completed. Cos can be written as this, sec can be written as this, and tan can be written as sin upon root 1 minus sin square. Now these are the examples what I personally think कि आपको explain करने वाले थे। इसके अलावा अगर आप कोई भी एग्जाम्पल जो है जो आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसे हैं। फाइन, सिर्फ एक एग्जाम्पल रहेगा जिसको हमने आपको पहले बोला था कि जो है हम सॉल्व कराएंगे, वो है आपका एग्जाम्पल सेकंड, ठीक है। उसमें भी आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि आपका जो एग्जाम्पल सेकंड है और जो आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है योर क्वेश्चन 6 है ना, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, और आपका जो एग्जाम्पल सेकंड है, ठीक है। हमने आपको बोला था कि इनमें स्लाइडली डिफरेंस है, ठीक है। आपके इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एंगल इक्वल दिया है या कोई आपको रेशियो इक्वल दिया है, ठीक है, और आपको कुछ प्रूफ करना है, उस कंडीशन में यहाँ पर कोई हिंट नहीं दी है ना कि जो एंगल आप यूज कर रहे हैं वो एक ही ट्राइंगल के हैं या दो ट्राइंगल के हैं ना। तो
अगर आप एग्जाम्पल 2 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है दैट वी हैव टू ट्राइंगल्स okay, we have two triangles and in which angle B and Q are acute angles. Fine, that means these are considered to be theta. इसको थीटा, इसको फाई ले लिया हमने. Such that sin B क्या दिया हुआ है, sin B is equal to sin Q. ठीक है, ये हमको गिवन है. फाइन, और हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q. अब जब हमको ये प्रूफ करना ही है कि एंगल B और Q इक्वल है तो हम इसको फाई ना लेके क्या लेंगे, थीटा ही लेंगे, क्योंकि जब प्रूफ करना मतलब इक्वल होंगे. ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बोला है शो दैट मतलब हमको ये हो सकता है या चेक करना हो, है ना, तो ये हो सकता है कि इक्वल हो ना हो, लेकिन यहाँ पर जब बोला है कि प्रूफ करना है मतलब ये होगा ही. ठीक है, सो विल टेक बोथ द एंगल्स एट थीटा. नाउ क्वेश्चन इज कि यहाँ पर बहुत क्लियरली समझ आ रहा है साइन बी साइन क्यू एंगल बी एंगल क्यू, दैट मीन्स वी हैव टू ट्राइंगल्स. लेकिन जो आपको क्वेश्चन 6 था आपके एक्सरसाइज 8.1 का, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था. ठीक है, वहां सिर्फ लिखा है एंगल ए एंड एंगल बी. तो ए बी सी जनरली वी टेक इन वन ट्राइंगल. ठीक है, वो हम एक ही ट्राइंगल में लेते हैं. तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि वहां आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं केस 1 करके. सपोज बोथ आर द एंगल्स ऑफ अ सेम ट्राइंगल. फाइन, लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियर है कि ये दोनों जो है अलग अलग ट्राइंगल के पार्ट्स हैं. फाइन, तो अभी कैसे करेंगे, जैसा हमने उसमें किया था वैसे ही करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है. सिर्फ आपको इतना यहाँ समझाना पड़ेगा कि आप जब यहाँ साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू लेंगे, ठीक है, तो आपके पास दो साइड्स का जो रेशियो आएगा. ठीक है, आई एम राइटिंग ओवर हियर प्रूफ साइन बी. अब साइन बी क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होगा आपका ए सी अपॉन ए बी गिवन इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू. विल टेक दिस एज के. हमने यहाँ पर ये जो रेशियो है इसको के के फॉर्म में लेंगे. ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए बी पहले इसको समझो जरा कि इसको क्या लिखने वाले हैं. ये सब आपको जो है मिल जाएगा आपके बुक में. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि ये जो है ये सब कुछ दिया हुआ है, के कैसे ले रहा है. ठीक है, आपके बुक में 1 और 2 इक्वेशन करके आपको मिल जाएगा. फाइन, अब यहाँ पर आप ये समझो कि ये आया कैसे है ना. ए सी अपॉन ए बी, अगर हम इसको छुपा लेते हैं क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू के. फाइन, तो ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी इक्वल्स टू होगा ए बी इंटू के. समझ पा रहे हो कि समझ पा रहे, ये देखो. अगर इसको हम हाइड कर लें तो ये लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू के. ठीक है, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी इक्वल टू होगा के इंटू ए बी. फाइन, ए सी विल बी होगा के इंटू ए बी, इजंट इट. और अगर हम इसको हाइड कर लेते हैं तो पी आर इक्वल्स टू होगा के इंटू पी क्यू. बस इतना आपको समझना है. ये आपकी बुक में क्या है, हिडन है, मतलब इस के बाद ये स्टेप नहीं दिया गया जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. तो कुछ भी नहीं करना आपको, एक पार्ट आप हाइड करो, अपने आप ये आ जाएगा. ठीक है, अभी क्यों लिया हमने, ये इसलिए लिया, हमें प्रूफ करना है कि ये जो रेशियो है इन साइड्स का ये के इक्वल है. अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो नेक्स्ट आपकी जो रिमेनिंग, जैसे ये दोनों साइड हो गई, ये दोनों साइड हो गई, ठीक है, इनका रेशियो तो मिल गया. अगर आपको ये साइड्स का रेशियो भी इक्वल मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास ये जो कहना चाहिए जो ट्राइंगल्स हैं ये आपको सिमिलर मिल जाएंगे. हालांकि अभी आपको सिमिलैरिटी कंसेप्ट नहीं बताया है, बट ओके, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे. और सिमिलर होने के बाद ये जो एंगल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. बिकॉज इट इज सेड इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, फाइन, देन ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इन प्रोपोर्शन.
सो साइड्स प्रपोर्शन हमको मिल जाएंगी, 2 साइड्स हमको प्रपोर्शनल मिली, थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करेंगे, ठीक है। And if all three sides are proportional, then we have the concept that triangles are similar, and if triangles are similar, all three angles are equal. And if three angles are equal, तो हमको three angles मतलब नहीं, हमको चाहिए कि B is equal to Q. So this is the hint for this question. If you are understanding this, it's okay. क्योंकि अभी आपको similarity concept नहीं बताया, तो हो सकता है आपको इसमें problem हो. नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव दिस एग्जाम्पल, जब हम सिमिलैरिटी पढ़ लेंगे उसके बाद आप इसको कर लेना। इसलिए हम इसको भी ज़्यादा प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं आपको कि इसको करना ही है, सिर्फ हमने आपको हिंट देके इसको छोड़ दिया है, क्योंकि अगर उसको हम पूरा सॉल्व कर भी देंगे तब भी अगर आपको सिमिलैरिटी वर्ड आ ही है तो बच्चों के दिमाग में घूमेगा कि कंसेप्ट हमको नहीं आता है, ठीक है। सो नो इशू। यहाँ के बाद अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं देन एवरीथिंग इज गिवन इन द बुक, आप उसको सॉल्व कर ले तो आपसे बन जाएगा, नहीं तो जो हिंट हमने आपको दिया आप उससे सॉल्व कर सकते हो, यू विल डेफिनेटली डू इट, ओके। एंड इनके अलावा अगर आपको कोई भी एग्जांपल है जो आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं या इनको आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या आप हमको जो है पर्सनल नंबर पर बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। आई विल मेक श्योर कि आपके वो क्वेश्चंस या आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे, एंड here I am finishing your 8th chapter, that means introduction to trigonometry. Fine. After this, if you want the classes, you please write to me in the comment कि आपको classes चाहिए, else as you wish, okay. I'll be uploading the videos as per the convenience, okay, of mine and of yours too. तो आपको चाहिए हो या कोई सा भी चैप्टर जो आपको पढ़ना हो आप वो लिख सकते हो, एंड देन I'll decide कि आपकी चॉइस यहाँ पर कितना, मतलब आपने क्या दिया हुआ है, आप कितना सोच पा रहे हैं कि इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था कि कुछ नया पढ़ाइए, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया। अब आपको इसके बाद जो भी चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट जो आपको लग रहा है या कोई ऐसा जो आपको ईजी पढ़ना हो, डिफिकल्ट पढ़ना हो, जो भी है ना, वॉट एवर बी, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो आप लिख सकते हैं, देन आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दैट चैप्टर, ओके। सो थैंक यू सो मच।